Hi everyone. So children, we will continue with the revision of chapter number 13, Why Do We Fall Ill? And in the previous video, we had discussed few questions. We are going to continue doing that. But this time you will be writing and you are not going to open your books. आप सही आ रहा है गलत आ रहा है, let us leave the dependency. I hope you have studied this much that you can take even a guess, but I prefer that you have studied and you know the answer, right? So we will begin with the match the column with the correct answers. ठीक है? So here we have column number 1 and here we have column number 2. Let's do it. First is, okay, we have fungal disease. Yes. Second is viral. Do it fast. Viral disease. Then we have protozoan. Protozoan disease. And lastly we have bacterial. Yeah, lastly we have bacterial disease. ठीक है? मैच आपने इधर करना है. Let's write the name of the diseases. Nobody will speak till I ask you. Okay? Dengue, cholera, spelling slightly wrong है. Cholera, and then we have skin disease and fine. Let's change the color. Okay. Have you written? Have you written? All right. Fungal disease. Skin disease. Very good. So skin diseases, fungal disease. Number 1 यहाँ आ गया. Viral disease. मलेरिया वायरल है. प्लाज्मोडियम क्या होती है? हाँ, प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटोजोवन है ना? किसी ने सही आंसर दिया था. डेंगू किसने बोला था? क्या बात. ओके, वायरल इज दिस. प्रोटोजोआ मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है ना? तो प्लाज्मोडियम क्या है? और कॉलेरा इज ऑलवेज अ बैक्टीरियल डिजीज. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट इट डाउन क्विकली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम वन डिजीज ईच. इसके नीचे ही लिख देते हैं. नेम वन डिजीज ईच when the pathogen targets, when pathogen targets, name one disease when pathogen targets the following organs. Liver. You have to write the name of the disease when I am going to say lungs. ठीक है? So आपको disease का नाम देना है जबकि ये दोनों organs target होते हैं. Name the disease when these organs are targeted by the pathogens. चलिए बताइए. When liver is targeted, which disease takes place? अगर liver पे infection होता है, पैथोजन की अटैक, जर्म्स की अटैक होती है, तो क्या होता है बताओ? What disease? Come on. What disease?
नहीं, यस और नो? क्रॉनिक डिजीज है, इफेक्ट लॉन्ग टर्म रहते हैं। उधर से टीम्स में भी कोई नहीं बोल रहा, वाई भाई? इट इज जॉन्डिस, राइट? एंड व्हेन लंग्स आर अटैक्ड, नेम अ डिजीज। Got it. Tuberculosis. Very good. कैंसर लिख सकते हैं, बट बेसिकली कैंसर तो कहीं का भी हो सकता है ना। कैंसर तो पूरी बॉडी में किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है, तो नहीं, वो आपके वेग आंसर्स नहीं लिए जाएंगे। यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक। एस्थमा इज फाइन, asthma will be accepted, cough and cold will be accepted, but when it is saying give an appropriate answer. Tuberculosis is absolutely correct. Next question, complete the given table. Okay, ऊपर सबसे इधर आएगा, हेडिंग आ रही है आपकी डिजीज। इसका अभी भी नहीं सही हुआ है, कहाँ लिखो कहाँ जाता है। डिजीज है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। ठीक है, डिजीज हो गया, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म आ गया एंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, चलिए ये टेबल मैं बना रही हूँ, उसके बाद आप पूरी करिए। डिजीज का नाम है, I'll change the color so that it is clear to you. The other side आपको दिख रहा है ना अर्पित? ओके, ये हो गया आपका। जल्दी जल्दी लिखो, बनाओ। यहाँ पे आ गया ए। आपकी आवाज रुक के आ रही बेटा, नेटवर्क इश्यू है, मैं क्या करूँ? ओके, यू कैन सी दिस थिंग, नो? ओके, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? देन वी हैव सी, विब्रियो कॉलेरी, and contaminated food and water, contaminated food and water. Then we have D, HIV and E. Then fourth we have common cold. This should be very easy for you. Everyone has to write and write it fast. Common cold हो गया, वायरस, एंड इसका इन्फेक्शन कैसे होता है। आधा आधा नंबर का आपका 3 नंबर का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, सो नाउ व्हाट डू वी डू? ओके, लेट्स चूज। चलो, ओके, सो डेंगू पॉजिटिव एजेंट क्या है? पॉजिटिव एजेंट क्या है? मस्कीटो, या हम लोग ले सकते हैं, नहीं, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? वायरस। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? कैसे लिखूं इसको? नीचे लिखूं? ए इज, या यहीं पे लिखने की कोशिश करते हैं, कलर दूसरा है। ए इज वायरस। आंसर्स आई एम राइटिंग विथ रेड। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? किससे होता है? मॉस्किटो। कौन सी मॉस्किटो? डेंगू एनोफ्लिस से नहीं होता है। ठीक है, चलो एडीज फीमेल मस्किटो। ओके, फीमेल मस्किटो। देन यहाँ कौन सी बीमारी हो रही है? बहुत इजी है, विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो शेप बैक्टीरिया है और कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। द नेम ऑफ द डिजीज इज कॉलेरा। ये कौन सी डिजीज है? एड्स। मोड ऑफ ट्रांसमिशन 4 होते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट,
फ्रॉम द मदर या इन्फेक्टेड सीरेंज, कोई भी आप लिख सकते हो, ठीक है। एंड देन लास्ट है ना, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपने काफी सारे लिख दिए। लास्टली कॉमन कोल्ड, वायरस एंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? एयर, नो, एयर से होते हैं, ठीक है। जो कोई भी छींकता भागता है कि उसके ग्लोब्यूल्स जो होते हैं उसमें ये वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या हो गया? एयर। प्लीज नोट डाउन द करेक्ट आंसर्स। जॉन्डिस में पढ़ाया तो मैं भूल गई, कल की वीडियो देखे ना, पूरी जॉन्डिस समझ में आ जाएगी। कल ही पढ़ाया ना जॉन्डिस, नॉट लॉन्ग टाइम बैक। सब एड्स था। For most microbes, the organ they target is related to their point of entry. Most of the cases ऐसा होता है ना। For most microbes, the organ they target, for most microbes, the organ they target is related to their point of entry. कि जिस पॉइंट, एंट्री पॉइंट से उन्होंने एंट्री करी वही ऑर्गन इन्फेक्ट किया, ठीक है। नाउ फर्निश डिटेल्स ऑफ योर आंसर अंडर द फॉलोइंग। ओके, थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है, कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपकी हेडिंग्स क्या आ रही हैं? ऑर्गन ऑफ एंट्री, ओके। फर्स्ट इज आपकी ऑर्गन ऑफ एंट्री, कहां से हो रही है? सेकेंड पॉइंट इज काइंड ऑफ माइक्रोब, काइंड ऑफ माइक्रोब, टारगेट ऑर्गन क्या है? मैं आपको वैरायटी के क्वेश्चंस करा रही हूँ, यू शुड हैव एन आइडिया, एंड व्हाट इज द डिजीज कॉज्ड, ठीक है। हम ये ना कॉलम 4। अब ऑर्गन ऑफ एंट्री दोनों केसेस में हमारी है माउथ, ठीक है, दोनों केसेस में माउथ है। काइंड ऑफ माइक्रोब, वन इज बैक्टीरिया and another one is virus. आपको ये पूरा करना है, आपको ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, ठीक है। तो चलिए, माउथ से वायरस एंटर कर रहा है, तो इजी अभी हम लोगों ने पढ़ा। क्या? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। दो आंसर दे सकते हैं। चलिए, माउथ से बैक्टीरिया आया तो कोई कफ एंड कोल्ड तो नहीं हुआ, बट सपोज इसने आपकी गट लाइनिंग यानी कि इंटेस्टाइन को अफेक्ट किया, ठीक है, या लिवर को इन्फेक्ट किया। इंटेस्टाइन को अफेक्ट करते हैं पहले, बैक्टीरिया है, क्योंकि अगर बैक्टीरिया है, टारगेट ऑर्गन इसने ले लिया है गट, आपकी इंटेस्टाइन, बीमारी कौन सी होती है? टाइफॉइड, ठीक है। माउथ है, वायरस है, आप कॉमन कोल्ड या इन्फ्लुएंजा भी लिख सकते हैं, ठीक है।
और नहीं तो माउथ से ही वायरस आपका एंटर करता है, जो कि जाता है कौन सी बीमारी है? लिवर अफेक्ट हो रहा है, जॉन्डिस। अब तो ये आपको रट जाना चाहिए, है ना, जॉन्डिस। प्लीज नोट इट डाउन। Now another question is very important. State 2 ways in which an infectious disease can be treated. State 2 ways in which or by which infectious disease can be treated. Children, इसमें आप अपना दिमाग लगाइए, ठीक है? 2 ways through which infectious disease can be treated. The other side, please keep on noting down the question. 2 ways आपको बताने हैं to treat infectious disease. किसी भी डिजीज को ट्रीट करने का OUS, infectious disease. 2 ways to treat infectious disease. किसी भी डिजीज को ट्रीट करने का पहला रीजन या पर्पस क्या होता है? बोथ साइड। हाँ बोलो बेटा। We have to write only cure or prevention both. प्रिवेंशन तो मैंने बोला ही नहीं। 2 ways to treat ना, प्रिवेंशन कहाँ है इसमें? 2 ways to treat। कोई भी डिजीज का ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं तो पहला रीजन क्या है, क्यों करते हैं? Mom, to treat the symptoms of the disease. To reduce the effect of the disease. भाई आपको फीवर हुआ है या वॉमिटिंग हो रही है तो आप क्या करते हो? पहला ट्रीटमेंट क्या करते हो कि उस डिजीज का इफेक्ट रिड्यूस करते हो। राइट इट डाउन। फर्स्ट टू रिड्यूस, आपको ऐसे लॉजिकली सोचना है, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज। अच्छा, आपने इफेक्ट, चलो लिख लो, बताते हैं। यू हैव रिड्यूस द इफेक्ट, ठीक है, लेकिन इफेक्ट रिड्यूस हुआ, उसके बाद आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? Mom, to kill the causative agent, eat medicines. Okay, speak when you are asked. Okay, बाकी बच्चे बेटा फिर आंसर नहीं कर पाते हैं, है ना? आप मुझे रीजन दो, एवरीवन। Here I am asking, give me a reason that आपने रिड्यूस कर दिया इफेक्ट। आज की गोली खाई, वो इफेक्ट रिड्यूस हो गया, लेकिन अगर वो इन्फेक्शन बना रहा तो कल फिर वापस फीवर हो जाएगा, फिर वापस डिसेंट्री शुरू हो जाएगी, फिर वापस एंटीबायोटिक। क्यों लोगे एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक क्योंकि एंटीबायोटिक से वो जड़ काट देगा। Somebody said to kill the germs, to kill the causing germs, to kill the causative germs. Write it down. And those whosoever has spoken was correct. To kill the causative agent, germ, whatever. To kill the causative germ या agent. आपको मैंने 4 तरीके के क्वेश्चन आज करा दिए हैं, ठीक है? लेट्स टेक वन मोर टाइप। 5, थैंक यू। assertion and reasoning। assertion and reasoning ये हम वही सबसे अच्छा है। आपके अच्छे या ना अच्छे होने पे, चलो एक बड़ा इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। लेट्स डू या how will you differentiate between acute and chronic disease? अपने आंसर्स लिखना शुरू करिए। चलिए, by the time I write the question on the board, everyone, both sides, please differentiate between acute and chronic disease. काफी important question है।
इन द सेंस कि इस बुक में इस चैप्टर का यही सबसे बड़ी बात ही यही है कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन acute and chronic disease. Acute and chronic disease. ठीक है, चलो, who will tell? Raise your hands. 1, 2. Okay. प्रभात, I am so happy to see your hand. बताइए बेटा, acute disease क्या होती है? The disease is for a very short period of time. पूरा सेंटेंस लिखेंगे, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ. It remains for a short period of time. Very good. और chronic? Long time. If this disease has it remains for a long period, and of course it has a long term effect also. It has a short term effect. ठीक है, basically ये है. Can you give me two names, not you, the other children? Now Hariom. Ma'am, example. Yeah. Example. Ma'am. Wait. Ma'am, head. Wait. Yeah. Ma'am, cough, acute disease. कफ एंड कोल्ड. बाप रे, ये तो आपने लगता है रट लिया है सारों ने. आई गेट ओनली दिस एग्जाम्पल ओनली, कफ एंड कोल्ड. ओके, एंड यस, जॉन्डिस को मैं अक्यूट तो नहीं कहूँगी. जॉन्डिस टाइफाइड ऑल्सो हैज लॉन्ग टर्म इफेक्ट. Ma'am, chronic, ma'am, asthma, chronic. Asthma will go into chronic. Yes. Ma'am, cancer. Asthma, cancer, Tuberculosis. Corona. Ma'am, acute में headache और vomiting. headache, vomiting, diarrhea. हाँ, TB अब treatable है, curable है, but then it takes 1 क्योंकि to मैम 2 हेडेक years to treat. तुरंत ठीक हो जाएगा. दवा खाने से एक महीने भी नहीं लगते, ठीक हो जाएगी. नहीं, TB का आपको precaution बहुत लेना पड़ता है. But चलिए. Ma'am, dysentery is acute disease of not. Yeah, dysentery is put in acute. Match loose motion. Dysentery, stomach infection, this all will go for आपका short acute disease, right? Yes, ma'am. Okay. One very important question, and that is, why are we advised to take bland and nourishing food when we are sick? Children, this is very important. I would like to discuss it also, but you think and answer. And now, why, when we are sick, ruk jao, let me write the question. Why are we advised to take? Ma'am, you will say when we are. Why? Why we are advised? Please write why. Why we are advised to take bland? What is it? Bland मतलब सादा. सादा. That is bland and nourishing food when we are sick. Why we are advised to take bland and nourishing food? Bland and nourishing food when we are sick. Okay, right. Let me change. Think. मैंने सोच लिया. सोच लिया, बाकियों को भी लिख लेने दो. मार्क्स का होगा ये, ठीक है? 1.5 मार्क्स का होगा एग्जाम. हाँ, ये अगर क्वेश्चन आता है तो ये आपका 1.5 to 2 मार्क्स का हो सकता है. चलो, लेट अस डिस्कस. When we are infected from a disease, there is a lack of nutrition in our body. So to fulfill
So to fulfill that meditation, we are said to take plant and Okay, not exactly. Nutrition, आपकी nutrition requirement I am accepting that yes, body is a lot of energy loss is there, and so you have nourishing food. But I have used the word bland also. Bland का मतलब एकदम सादा फीका खाना, कम भुना, less oil, less spices. That is bland food. तो हाफ सेंटेंस इज करेक्ट बट नॉट कम्प्लीटली. मैंने आपको आंसर एक दूसरी तरह से हिंट कर दी है. नाउ यू प्लीज आंसर इट. आई हैव गिवन यू अ हिंट. यस दिव्यांशु. When we fall sick, our body function is disturbed. So when we eat heavy food, so it not properly digest. Very good. So we eat bland. Very good. Yes, we eat a bland food because it has less of oil and spices. And when you are sick, you are not motile. आपकी body movement बहुत कम हो गए हैं, है ना? तो क्या हो रहा है? आपका digestion weak हो गया है, right? भाई आपको बोलते हैं ना खाने के बाद तुरंत सोना नहीं चाहिए, वॉक करनी चाहिए. आप जब बीमार हो, आप बेड रिडन हो, आप ज़्यादा उठ के चल ही नहीं पा रहे हो, तो डाइजेशन आपका वीक हो गया है. उसमें अगर हम बहुत ऑयली फैटी स्पाइसी फूड खाएंगे तो डाइजेशन वीक होगा, आपको और इंडाइजेशन होगा, गैस होगी, वॉमिटिंग होगी, ये सारी एसिडिटी होगी, ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी. दैट इज वाई डॉक्टर एडवाइसेस दिस. यस मैम, इज आउट ऑफ योर एक्सपीरियंस. नो मैम, मेरा नहीं हुआ. मेरे साथ मैम मतलब मेरे घर पर आंटी ना उनका है. अच्छा ठीक. Mom, I have such an experience. Yeah. Okay. So children, your body cannot digest that spicy fatty food, and that is why it is always advised to have bland and nourished food. Second, you need lot of energy, है ना? आपका फीवर की वजह से या जिस भी वजह से एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा है. टू रिकवर दैट वीकनेस यू नीड नरिशिंग फूड, and your body needs to regenerate new cells, है ना? Regain its immunity, and for that also you need nourishing food. So there are 3 points. मैम 3 प्लीज. क्यों 3 बोला? एक इंडाइजेशन, सेकेंड आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट, एंड थर्ड टू यू नीड एनर्जी और नरिशमेंट टू रीजेनरेट योर न्यू सेल्स और what regain the immunity. All right, so thank you very much. Please note down these questions. अगर गैस नहीं बने तो उसमें लिप्टन